جی، تو کھیتی باڑی جو ہے وہ انسان کا سب سے پرانا پیشہ ہے۔ پہلے انسان کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، بیل ہل کے آگے باندھ دیے جاتے تھے اور اس کی مدد زمین کو نرم کیا جاتا تھا، اور پھر بیج ڈال کر زمین کو پانی دینے کے لیے بہت پریشانی کسان کو اٹھانی پڑتی تھی۔ دور دراز دریاؤں سے، ندی نالوں سے پانی لا کر جو ہے وہ ان فصلوں کو دیا جاتا ہے، جو کہ بڑا مشکل کام تھا، یا پھر بارش پہ انحصار کرنا پڑتا تھا کہ اگر بارش ہو گئی ہے تو فصل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر بارش نہیں ہوئی تو فصل خراب ہو جاتی تھی۔ لیکن اب سائنس کی بدولت زراعت کے میدان میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ ہل کی جگہ جو ہے وہ ٹریکٹر نے لے لی ہے۔ ٹریکٹر جو ہے وہ ایک مشین ہے جو کہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے ڈھیر سارا کام کر زمین کو نرم کرنا، پھر اس میں بیج بونے والی مشینیں آ گئی ہیں، پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل جو ہیں وہ ایجاد ہو گئے ہیں۔ اب کسان کو بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، یا دور دراز سے پانی کا انتظام نہیں کر کے لانا پڑتا دریا یا ندی سے، بلکہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ فصل کو ضرورت ہے تو وہ اسی وقت ہی اپنی فصل کو اپنی مرضی کے مطابق جتنا پانی دینا ہے وہ ٹیوب ویل چلا کر دے سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے زراعت کے شعبے میں بہت ترقی ہوئی اور فصلیں بہت اچھی اور بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پرانے زمانے میں فصلوں کو کیڑے مکوڑے جو تھے وہ خراب کر دیتے تھے، یا زمین میں کوئی مسئلہ جس کی وجہ سے فصل اچھی نہیں ہوتی تھی، تو کیا تھا کہ کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے مختلف کیمیکلز کے اسپرے ایجاد ہو گئے، جو کہ فصلوں کے اوپر چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے تو اس سے فصل کو خراب کرنے والے کیڑے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو زمین سے ہی فصل نہ دے اس کے اندر کھاد ڈالی جاتی ہے جس سے زمین جو ہے اچھی فصل دیتی ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب ترقی سائنس کی بدولت ہی ممکن ہوئی، یعنی کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو یا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں سائنس نے اس کی زندگی پہ اثرات نہ ڈالے ہوں۔ پھر ایک اور سائنس کی ایجاد ہے، یہ وہ ایجاد ہے کہ جس نے تو انسان کو بہت زیادہ حیرانی میں ڈال دیا۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد، حیرت انگیز یعنی کہ حیران کر دینے والی ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطۂ حیرت پہ ڈال رکھا ہے۔ ورطۂ حیرت پہ ڈالنا یعنی کہ بہت زیادہ حیرانی میں ڈالنا۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا۔ خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ جی، تو کمپیوٹر کی بدولت انسان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ اتنی ترقی ہوئی کمپیوٹر کی بدولت کی جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا تھا، خیال نہیں کر سکتا تھا۔ خلائی تحقیق، خلا یعنی کہ آسمان کے اوپر جو ہے وہاں پہ جو چھان بین کی جاتی ہے، جو معلومات حاصل کی جاتی ہے سیاروں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، کہکشاؤں کے بارے میں، وہ سب کی سب کمپیوٹر کی بدولت جو ہے اس میں آسانی پیدا ہوئی۔ میڈیکل کا شعبہ ہے، ریاضی کا میدان ہے، میتھمیٹکس ہو یا انجینئرنگ، ہر جگہ پر کمپیوٹر کا استعمال جو ہے ان تمام شعبوں کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پر آسائش بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان کی کم فہمی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ۔ اب تک ہم نے جتنا بھی اپنے اس چیپٹر میں پڑھا، اس میں سائنس کی وہ تمام ایجادات تھی جن کی وجہ سے انسان نے اپنی زندگی میں سہولتیں لے کر آیا، انسان اپنی زندگی کو اس نے آرام دہ بنایا۔ لیکن ان سہولتوں کے ساتھ ساتھ انسان نہ چاہتے ہوئے، کم فہمی کا مطلب ہے کم عقلی،
इंसान अपनी कम अक्ली की वजह से ही उसके साथ साथ कुछ गलत चीजें भी ले आया। उसने साइंस के इल्म को मनफी तौर पे इस्तेमाल किया, यानी कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और ऐसे ऐसे हलाकत खेज हथियार और गोला बारूद बना लिए कि खुदा की पनाह। अब ये जो एटम बम है, मिसाइल्स हैं, ये सब चीजें भी साइंस की इजादात ही हैं। यानी कि हर चीज का अच्छा या बुरा इस्तेमाल होता है। अगर आप उसे अच्छे, इसी तरह साइंस का अच्छा इस्तेमाल भी है और साइंस का बुरा इस्तेमाल भी है। इंसान अगर साइंस को अपनी जिंदगी में फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो ये साइंस का एक अच्छा इस्तेमाल है, ये उसके फवायद और समरात हैं। लेकिन अगर इंसान इसी साइंस को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करे, दुनिया को तबाह करने के लिए, ये नुकसान पहुंचाने के लिए इंसानियत को इस्तेमाल करे, तो ये साइंस का गलत इस्तेमाल है। तो क्या है कि इंसान ने साइंस के इल्म को भी मनफी तौर पर, यानी कि गलत तौर पर इस्तेमाल किया, और ऐसे ऐसे हलाकत खेज हथियार, हलाकत खेज यानी कि हलाक कर देने वाले हथियार बनाए, उससे गोला बारूद बनाया कि खुदा की पनाह, कि अल्लाह ही बचाए इंसान की इन इजादात से। एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह ऐसी ही हलाकत खेज इजादात हैं। हलाकत खेज का मतलब मार देने वाली, कि एटम बम और हाइड्रोजन बम जो है ये ऐसी चीजें हैं कि इनसे तो चंद सेकंड्स के अंदर पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ताहम ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अगर हम साइंस और साइंसी इजादात को इंसानी फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें तो ये जमीन और माशरा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का नमूना बन सकता है। जी, आखिर में यही बात है कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, इंसान पे मुनहसिर है कि वो उसे किस तरह से इस्तेमाल करता है। ये इंसान के हाथ में है कि वो उसे कैसे इस्तेमाल करेगा। तो अगर हम साइंस और साइंसी इजादात को इंसानियत की भलाई के लिए और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें तो ये जमीन, मुआशरा, अमन, मोहब्बत और भाईचारे का नमूना बन सकता है। जी, अब आगे चलते हैं मश्क की तरफ। जी, ये सबसे पहले है आपका पेज नंबर 61 पे कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मैच करना है। छुपे खजाने, सरबस्तराज। मैंने आगे बेटा आंसर लिख दिए हैं ताकि आप उसको आसानी के साथ नोट कर सकें। फिर आसाइश, आसानी। बाहमी राब्ता, मेलजोल। गर्मी, सर्दी। तिब्बी शोबा, अद्वियात। खेती बाड़ी, ज़राअत। ये नोट कर ले बेटा। नेक्स्ट पेज है 62। जी, साइंसी करिश्मे के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। अलिफ है, कबल इस तारीख का इंसान दरियाओं, समंदरों, सूरज, चांद और सितारों को क्या समझता था? खुदा, देवता, आका या मालिक? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, देवता। अपनी बुक के ऊपर बेटा ये एमसीक्यूज मार्क कर लें। बे है, आज दुनिया का कोई भी मुआशरा किससे चश्म पोशी नहीं कर सकता? साइंस के एहसानात से, साइंस के इनामात से, साइंस के समरात से या साइंस के असरात से? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है, साइंस के समरात से। जी में, बाहमी राब्ता हमेशा से इंसान की कौन सी आरजू रही है? बड़ी, दिली, कल्बी या शदीद? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, दिली। दाल है, साइंसी इजादात ने इंसानी जिंदगी को बहुत ज्यादा किया है। मुहज़्ज़ब, तेज, आसान और मुतासिर? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 है, मुतासिर। है, इंसान ने अपनी साइंसी इजादात के सफर के आगाज में क्या इजाद किया? बिजली, पहिया, रोशनी या लिबास? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पहिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अव्वल इंसान बाहमी राब्ते के लिए क्या इस्तेमाल करता रहा? घोड़े, इशारे, कबूतर या खतूत?
इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 है कबूतर। जे है इंसान का कदीम तरीन पेशा क्या है? मौलमी, लकड़हारा, खरीदो फरोख्त या खेती बाड़ी? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 है खेती बाड़ी। है किस इजाद ने इंसान को वर्ता हैरत में डाल रखा है? पहिया, बिजली, मोटर गाड़ी या कंप्यूटर? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 है कंप्यूटर। जी, दरअसल वाहिद अल्फाज के जमा और जमा के वाहिद लिखें। दौर ये वाहिद है, इसका जमा है अदवार। फरीजा वाहिद है, इसका जमा है फराइज। अमराज जमा है, इसका वाहिद है मर्ज। अद्वियात भी जमा है, इसका वाहिद है दवा। जी बेटा, ये नोट कर लें। अब उसके बाद अपनी वर्कबुक निकालें। वर्कबुक के बेटा अल्फाज मानी आपको मैंने बुक में डिटेल में मार्क करवा दिए हैं, तो इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। बेशबहा, कीमती, पेचीदा, मुश्किल, तस्खीर, फतह करना, समरात, फायदे या फल। रसाई, पहुंच, साथ, घड़ी, सरबस्ता, छुपे हुए, सहल, आसान, सऊबत, मुसीबत, फलाह बहबूद, बेहतरी और भलाई। कबर तारीख, बहुत पुराना या पुराने जमाने का भी लिख सकते हैं आप। गोशा, कोना, मरहून मिन्नत, एहसान मंद, वर्का हैरत, बहुत ज्यादा हैरानी। जी, अब सवालात की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है, इंसान ने साइंस का इल्म कैसे सीखा? इसका जवाब है, पत्थरों को रगड़कर आग जलाने से लेकर अपने बदन को कपड़ों से ढांपने और दीगर चीजों के तजर्बात से इंसान ने साइंस का इल्म सीखा। सवाल नंबर 2 है, इंसान ने जमीन के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने के बाद क्या किया? इंसान ने जमीन के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने के बाद चांद तक रसाई हासिल की। आज मरीख और दूसरी दुनियाएं इंसान की तस्कीर की लपेट में हैं। जी, इंसान ने किस तरह अपनी जिंदगी को पुरआसाइश और सहल बनाया? इंसान ने साइंस की वजह से समंदर की तह में उतरकर और जमीन के सीने को चीरकर उसमें से सोना, हीरे, मोती और दीगर कीमती मादनियात दरियाफ्त की। साइंसी इजादात की बदौलत इंसान ने अपनी जिंदगी को पुरआसाइश और सहल बनाया। सनत व हरकत का दारोमदार किस चीज पर है? इसका जवाब है, सनत व हरकत का दारोमदार बिजली पर है। साइंस की हलाकत खेज इजादात कौन कौन सी हैं? इसका जवाब है, एटम बम और हाइड्रोजन बम वगैरह साइंस की हलाकत खेज इजादात हैं। जी, ये जमीन और माशरा किस तरह अमन, मोहब्बत और भाईचारे का नमूना बन सकता है? इसका जवाब है, अगर हम साइंस और साइंसी इजादात को इंसानी फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें तो ये माशरा और जमीन अमन, मोहब्बत और भाईचारे का नमूना बन सकता है।
जी बेटा, अब आखिर में मैं आपसे बस आपके पेपर के हवाले से बात करूंगी कि कल आपका उर्दू का पेपर है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करनी है और पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने नीट एंड क्लीन पेपर करना है, उर्दू मार्कर का इस्तेमाल करना है। कुछ बच्चे आम सिंपल मार्कर यूज करते हैं, तो सिंपल मार्कर जो है बेटा वो अगर आप इस्तेमाल करो तो टीचर को पता चल जाता है कि आपने उर्दू मार्कर से लिखा है या सिंपल मार्कर से। तो अगर आप पेपर गंदा करेंगे तो बेटा मैं आपके मार्क्स की कटिंग करूंगी। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स आपने लेने हैं, सिलेबस आपका इतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए आप बराए मेहरबानी बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन आपने पेपर करना है। ठीक है, छोटा सा पेपर, आपका 30 मार्क्स का पेपर है, ये लंबा चौड़ा पेपर नहीं होता, इसलिए बेटा उसको बहुत जो है वो आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। जी बेटा अलीजा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकती हैं। जी अलीजा। अलीजा बेटा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी खदीजा एजाज, बेटा आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। टीचर वालेकुम अस्सलाम। टीचर वो आज मैं बेटा आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। जी बेटा खदीजा। अंसा हुसैन, जी बेटा। जी बेटा अंसा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मिस, आपको मेरी आवाज आ रही है?